Class, a very very good morning to all of you. सबको मेरी आवाज आ रही है? Everybody is able to hear me? Yes, sir. Good morning all of you. You Good have the morning, chat sir. section, you have the mic section. Open it up. Say good morning. Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, sir. Good morning. Okay, so everybody is ready for today's activity. Okay. For today, there are two options for all of you, and please be honest. I have made a very beautiful presentation. This is called as a PowerPoint presentation. Okay. I've made it a very beautiful PowerPoint presentation, and it's about the career and opportunities and all that stuffs to discuss about. This is the first option, what we can do today, or you also have another option, that is a story option. Story means it will be a story from my life. I'll be discussing the things which I faced in my life. I'll give you a very practical examples from my life. So you have the option to choose. Should I start with the regular PPT, which is like, a traditional method which is followed by everybody, right? Or you want my story? Okay, I'll give you the benefits of my story. I will convince you that you should select this story of mine, because I'll be sharing my examples with you, what happened with me, and I'll answer a very, very important and a very beautiful question, which every student has there in their mind, that what should I become? Like, what should be my aim? What should be what should be I doing after like giving NEET or giving JEE or giving MST CT? What is my future look like? ये सवाल का जवाब बहुत लोगों के पास नहीं होता है, ठीक है? So I'll tell you that how did I get this answer in my life, that I want to become a teacher. That's why I'm teaching you right now, right? I'm teaching physics for you. So from where did I get this thing in my life, like I want to become a teacher? Like, was this a forced decision? Like someday I just thought of becoming a teacher and I just started teaching physics, or it was a gradual process and all that? So the comment section, mic section is yours. You want the PPT, the traditional method, or you want the story? It's totally about you. Come on, I need interaction. If this is a second lecture with me of yours, you know that I need replies. Come on. Story. Story, okay. Story. Story, okay. Story. Okay. Chat section में भी दो लोग ने story बोल दिया वैसे. Story. Story, okay. Story. Very good. Story. Very good. Okay, so I consider that you are ready to understand my story. Okay, all of you, for the next 45 minutes, listen to this story very, very carefully. Okay, it's not anything fake here, nothing like developed by me. It is my real life story. Why I'm sharing you with this? Because whenever you go out, right, you must have attended n number of career seminars. N number of career seminars. I think like every day we have a career seminar in our home only. है ना? हमारे घर, खुद के घर में ही career seminar प्रतिदिन चलता रहता है. We are like every day, our parents is like कुछ बनना है, कुछ करना है, and all that stuff. It is happening every day. But what is more important for you as a student is that seminars will not help until and unless you are on the right path. Like, how will you achieve a particular thing. That's why this story is there. Okay, let me not start from very early, like where jab main paida hua tha and all that. I won't go so much back. We'll be fast forwarding it to the future, little bit future. Okay, so first of all, let me tell you that I belong to a family in which my father was serving army. Means he was an army officer. Okay, and he got retired few years back. So when he was in army, we traveled each and every state of India. Okay, I have been into most of the states of India, and it was a very wonderful experience. Like being an army kid, I'll write here army kid because they call it like that. If you're an army kid, they call it like an army kid.
So it wasn't very beautiful experience. Okay, and it has pros and cons also. Like I'll tell you the cons. One of the con was that I think when I was in the 7th or 8th, no, I think I was in 4th to 6th standard, something like that. At that time, my father was posted to Ladakh. That is the border. Okay. So my father was 3 years in Ladakh. So that is a very big task because I was alone with my mama and my sister, and my father was in Ladakh. 3 years. So this is something which I'm telling you because you should understand what is the background. Now, being an army kid, do you know what happens? Whenever my father used to see me, he was like, "Tu officer banega. Tu army officer banega." Whenever he used to see me, he has this thing in his eyes ki, beta, you have to become an army officer. Why? Because being a army person, he saw this thing that newly like 23, 24-year-old kid is an lieutenant colonel there in the army. Lieutenant colonel, do you understand what a lieutenant colonel is? Stars on the shoulder. Like my father, if he had 2 stars, they have like a Ashok Stamp and all that, and they are the top ranked persons of the Indian Army, respected persons of the Indian Army, and they are like 23 years old. And my father used to look at me and is like, "Mera beta bhi 23 years banega, to mera beta bhi army mein jayega." And because of this, one thing was in my mind, that was NDA. Anybody knows the full form of NDA? National National Defense Defense Academy. Yes, National Defense Academy. This was my aim when I was touching the 10th standard or 11th standard. Like अभी जब आप ये सुन रहे हो मेरी बातें, जब मैं आपकी एज में था, this was on my mind. And see, the point that I have to focus here was that this was not on my mind because I wanted it. This was on my mind because my father wanted it. Let me make it clear. And this happens with everybody. If your parents are doctor, they see a doctor in you. Okay, they see a doctor. This is by default settings of parent. Most of the parents, I'll say around 95% parents, they have this setting in their mind. Whatever they are, they look the same thing in their students, in the children only. But somehow this didn't happen. I was not able to complete the NDA. उसकी अलग स्टोरी है, कभी बाद में समझाऊंगा. But what happened after that? After that, what happened was that I think we were in Delhi when I was in 10th. So what happened was that my father was about to get posted somewhere, and luckily he got the posting of Pune. And my father was very happy, and I was also very happy. Our family was very happy because Pune means like our hometown, like it's very close to our home. So being a Maharashtrian, we were like, "Yaar, Pune mil gaya, bas khatam ho gaya, yaar, maza aa gaya." It's really good that we are like we are going to live inside Maharashtra, and we were very happy. So when I entered Pune, I was actually in 11th when I entered Pune. What happens is that you stay in army quarters. I was staying in the 2nd floor. This was my house, and there was a house above me. There was a 3-4 building, 3-floor building. I was staying in the 2nd floor, and there was a 3rd floor. जो 3rd floor का बंदा था, he is still my best friend. वो बंदा पुणे में, अगर आपको पता है, there is called as MG Road, a very famous place. This is also called as camp also. वो बंदा MG Road camp में जाता था for the IIT preparation. At my time, it was called as IIT. अभी आप लोगों के time में that is called as JEE. Okay. He used to go for IIT preparation. One day, his father and my father, they met somewhere in the parking section. And in army, they talk with the words like Sahab. If you address anybody, you address with Sahab. Okay. So my father was like Jai Hind Sahab. So his father was like Jai Hind Sahab, or Sir, kya chal raha hai?
इसलिए कुछ नहीं सर, बेटा अभी 11th में है. And in army, you know, whenever you meet people, they are very, very, you know, they are very, very welcoming. If you go in army parties also, if you sit with an officer also, the first question the officer will ask you is like, बेटा क्या करता है, बेटा क्या कर रहा है आजकल, सर 11th standard, बहुत अच्छे, पढ़ाओ लिखाओ. मतलब they are so supportive in army, you know, like if normal army parties होती हैं वहां पे, उसमें भी आप चले जाओ, ऐसे ही आपको मिलेगा माहौल. So his father and my father, they met and like जय हिंद साहब, like जय हिंद साहब, like क्या कर रहा है बेटा, like सर अभी 11th में, और मेरा बेटा भी 11th में. लाइक क्या कर रहा है आपका बेटा, बोला कुछ नहीं साहब, स्कूल जाता है, फिर शाम में एमजी रोड जाता है, वहां पे हमने आईआईटी की कोचिंग लगाई है. As soon as my father heard this, he found an opportunity into this. It's not that my father came to me as like चल तू आज के बाद से आईआईटी कर रहा है. It's not that, it was not like that. My father came to me and he just discussed like so and so person का son ऐसे ऐसे आईआईटी की कोचिंग्स जाता है. So what is your thought? I was like हम भी करेंगे, हम थोड़ी ना किसी से कम है. We'll also go for IIT coaching. From that time, I started my IIT coaching. The point to be noted down here is that, to be really honest, when I was at your age, I didn't know ABC of IIT also. I didn't know what's IIT also. मेरे को तो full form भी नहीं पता होगा वो time पे. To be really honest, in this story, I am the villain, and in this story, I am the hero. So I will share each and everything with you, that how dumb I was, or how heroic I was, or how I am like today. There is a journey, so you should not hide anything. So listen it to a very, very deep thing. Listen it very, very carefully. I didn't know anything about IIT. मैं क्यों गया IIT coaching करने? Because my neighbor का लड़का was going for IIT coaching. So I was also in IIT coaching. You won't believe, 2 years मैंने जो मेहनत की है IIT crack करने की. I used to feel that I am the most hardworking kid in that class. मेरे मार्क्स अच्छे आते थे, मेरे everything was good. I used to score well in the test what they used to do, and we were like, you won't believe students, we used to sleep at 3 a.m. मतलब मैं और वो ऊपर वाला नेबर हम साथ में पढ़ते थे, 3 बजे सोते थे हम रात को. एवरी डे 11th और 12th का मैंने हर दिन रात को 3 बजे सोया हूं, और मैं सुबह 6 बजे उठा हूं, बिकॉज मेरा स्कूल का बस आता था अराउंड 7:30 बजे. 7:30 से मैं 2 PM तक स्कूल करता था, फिर वापस बस पकड़ के मैं जाता था एमजी रोड. 3 PM से 8 PM तक मेरे आईआईटी की कोचिंग क्लासेस चलते थे, और 8 PM वापस मैं घर आता था, खाना खा के सुबह 3 बजे तक पढ़ता था. यू वोंट बिलीव द अमाउंट ऑफ हार्डवर्क आई हैव पुट इन. व्हाट डिड हैपन? आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द आईआईटी. नाउ आफ्टर वर्किंग फॉर 2 years, if I was not able to clear IIT, हालांकि उस समय AIEEE भी था, ठीक है, this was a very popular exam at that particular time. And now AIEEE has been scrapped. You have MST, CET and stuffs like that. AIEEE में मेरा काफी अच्छा स्कोर था, बट IIT I was not able to crack. उस समय IIT में स्कोर नहीं बताते थे, सिर्फ बताते थे आपने क्रैक किया कि नहीं किया. अब जब कंप्यूटर स्क्रीन पे ओपन होता है ना, आप अपना नंबर डालेंगे, आईडी वगैरह डालेंगे, सो इट इज लाइक यू हैव नॉट पास्ड. दे वोंट से कि कितना आया कितना आया. आई वाज लाइक बता तो दो कितना आया, मुझे पता तो चलेगा. लाइक यार मैं बहुत पीछे रह गया, या मैं 1 मार्क से चूक गया, या मैं 5 मार्क से चूक गया, कुछ तो बता दो. नो, दे यूज्ड टू नॉट टेल दिस. बस स्क्रीन पे आता था, यू आर नॉट क्रैक द थिंग. But halaki I had cracked AIEEE, and that was a very good score what I've cracked. You know what, after this what happens? Suddenly some people appear and they are like giving you n number of suggestions. Suddenly somebody came to my father and he was like, sir, बेटे ने 2 साल मेहनत की है, ऐसी मेहनत को आप गवाइए मत. Please tell him to take a drop. उसको ड्रॉप लेने के लिए कहो, कहो कि और 1 साल मेहनत करे, पक्का उसका आईआईटी में हो जाएगा. My father again came to me. He was like, बेटा, there is something in the market called as drop. मैंने कहा, yes papa. Would you like to take a drop? I said, I'll think. This was the first time when I told my father I'll think. Otherwise I never thought. Because जब IIT क्रैक नहीं हुआ, I still remember that thing. I was in the internet shop. तब 10 साल पहले there were not internet at home and all that. I used to go to an internet cafe. मैंने वहां पे अपना result check किया था, and when I checked my result there, I was very unhappy, very, very unhappy, totally devastated. And I was like, what happened to me? This thing, I somehow said I won't take a drop. I don't know why.
I don't know why. At that particular time, I just said that I don't want to take a drop. I said my father that I have a good score in IIT, sorry, in AIEEE. I'll get a good college by this. While filling the cap round form via AIEEE, वहां पे लिखा हुआ था डिफेंस कोटा. To be really honest, I didn't knew what defense quota is because my father was in army. He was a serving officer, and I didn't knew what defense quota is. In fact, I didn't knew this also that I belong to an open category, and I didn't knew this also there is an SC or there is an OBC category also. मुझे ये भी नहीं पता था उस वक्त. हालांकि अभी आप इतने सारे करियर सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो आपको पता है लाइक इफ यू हैव लाइक इफ योर ओबीसी करियर ये कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ओपन या जनरल के लिए तो कुछ नहीं चाहिए. तो ये सब ऑप्शंस वहां पे थे. बाय लकीली I ticked marked on open and by luckily I just ticked marked on defense quota like my father is there. मुझे पता भी नहीं, मेरे को लगा चल पूछ रहा है. पहले तो मुझे ये डाउट आया क्यों पूछ रहा है कि मेरे फादर डिफेंस में है या नहीं. मेरे पापा को जाके कंप्लेन तो नहीं करेंगे कुछ. लाइक नहीं यार, ऐसे कंप्लेन करने के थोड़ी कैप राउंड फॉर्म में पूछेगा. लाइक टिक मार्क कर दो. यू वोंट बिलीव AIEEE के मेरे मार्क्स प्लस द डिफेंस कोटा combined got me a good college in Mumbai. And in that particular form, when I was allocated a college, it was written that this is because of your marks plus defense quota has been applied. Means in every college, there is a defense quota, there is an army quota. And I didn't knew this at all. मेरे family में किसी को नहीं पता था, ना मुझे पता था. The moral of the story is that you as a student, you also don't know many stuffs जो मार्केट में है और आपको पता ही नहीं उसके बारे में. आप n नंबर ऑफ सेमिनार्स अटेंड कर लो, फिर भी आपको नॉलेज नहीं मिलेगा. Somehow I was in engineering. That too ETRX. That means electronics engineering. I was going for the bachelor's degree of electronic engineering from Mumbai University. Please understand, till now आपके स्टोरी का जो बंदा है यानी कि मैं, उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन क्यों लिया है उसको खुद को नहीं पता है. प्लीज नोट दिस पॉइंट. प्लीज नोट दिस पॉइंट. वन डे somebody met my father. He was like, सर क्या कर रहा है आपका बेटा? मेरा बेटा आईआईटी जाता है, मेरा बेटा भी आईआईटी जाएगा. उस वक्त मैं भी आईआईटी में घुस गया. ठीक है, मुझे नहीं पता मुझे जिंदगी में क्या करना है. ओके, आईआईटी क्रैक नहीं हुआ, AIEEE क्रैक हुआ. AIEEE से फॉर्म भरा और जो मर्जी वो ब्रांचेस डाल दिए, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड ब्रांचेस डाल दिए. नो क्लैरिटी कौन सा ब्रांच डालना है, कौन सा ब्रांच नहीं डालना है, क्योंकि कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं बनना क्या है. आई नेवर थॉट. 10वीं के बाद जब थोड़ी अक्ल आई तो आई वाज लाइक एनडीए करना है. उसके बाद जब पुणे आया आई वाज लाइक आईआईटी करना है, इतना पता था. हमें ये भी नहीं पता था कौन सी इंजीनियरिंग की ब्रांच है. मुझे तो ये तक नहीं पता था कि हाउ मेनी इंजीनियरिंग ब्रांचेस आर देयर. व्हेन आई एंटर्ड द कॉलेज तब मुझे पता चला कि अच्छा कॉम्स है, अच्छा आईटी भी होता है, अच्छा कॉम्स और आईटी अलग अलग होता है. अच्छा ETRX मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्योर. देयर इज EXTC दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. देन देयर इज मैकेनिकल. मैं बोला आइला इतना सब कुछ होता है. बट somehow I was very much attracted towards electronics. I got this. Such a dumb fellow, knowing nothing, is into engineering. I'll repeat, I never thought that I'll become an engineer. Never ever I thought I'll become an engineer. But अभी admission मिल गया है तो अब तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? Now here, after I took admission in Bachelor's of Engineering Electronics, अब मेरी लाइफ चेंज होना शुरू हुई. First thing, I was not with my parents because my parents were living in Pune. And my parents were living in Pune, but my father, he again got posted to the Assam border. That is the Assam and China border. So Assam and China border पे जब posting हुआ मेरे dad का, that was my last posting of my dad. So he was not able to take the family with him because वहाँ पे family allowed नहीं है. Because every day the troops,
they were they were going from the border to border, and वहाँ पे उस समय border का tension आज भी है, उस वक्त भी था. So the troops were regularly visiting the borders of all these Indian borders. So वहाँ पे family allowed नहीं थी. So my father, what he did, he kept my mother and sister in Pune only, क्योंकि पुणे is a very good city. आप वहाँ पे बिल्कुल आप अपने फैमिली को एक अच्छी तरह से रख सकते हो. This was the thing in my father's brain, and it is true. And he went to Assam, and I was in Mumbai. Now, the point to be noted here is that as I landed in Mumbai, I was a kid who can take his own decisions. Yes, mobile phones were there, but इतना communication नहीं रहता था. अब मैं मेरे decisions खुद से लेता था, क्योंकि मेरे पास अब कोई डिस्कशन के लिए नहीं था. तो वुड यू थिंक दैट पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए? दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? नहीं, ऐसा नहीं है. पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहिए, दिस इज नॉट माय मॉरल ऑफ स्टोरी. माय मॉरल ऑफ द स्टोरी इन दिस पार्ट इज दैट you should be ready to take your decisions rather depending on someone. See, there are two things. One thing is called as discussion, right? And another thing is called as decision. डिस्कशन और डिसीजन में फर्क होता है. आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो, बट डिसीजन शुड बी योर ओन. व्हाट हैपेंस इज दैट इन द करंट स्टूडेंट, डिस्कशन इज इक्वल टू डिसीजन. आप जिसके साथ डिस्कशन करते हो, वो डिस्कशन में जो आउटकम निकलता है वो आपका डिसीजन हो जाता है, रादर थिंकिंग एनीथिंग. दिस इज नॉट इक्वल. डिस्कशन शुड नेवर बी इक्वल टू अ डिसीजन. कीप दिस इन माइंड. Okay, let us go forward in the story. I was in electronics department. बड़ा मजा आ रहा था, बहुत ही बढ़िया लग रहा था. फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग जो धमाल मचाया है हम लोगों ने, you won't believe the dhamal was so much. The dhamal was not on academic section. Okay, let me be very honest. I didn't do any dhamal in the academic section, but we मतलब मेरे हॉस्टल का जो हमारा क्राउड था, हॉस्टल बॉयज का जो क्राउड था, we did very much dhamal. Let me share a very small story. क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ईयर का कल्चरल फेस्टिवल था. You must have heard about cultural festivals, like. तो फर्स्ट ईयर के कल्चरल फेस्टिवल्स की अनाउंसमेंट हुई कि दैट वी विल स्टार्ट अवर एनुअल कल्चरल फेस्टिवल. सो जितने लोग भी आना चाहते हैं फॉर डांस एंड सिंगिंग एंड ऑल दैट, प्लीज कम अप. तो ये कल्चरल फेस्टिवल का अनाउंसमेंट हुआ. एक वीक तक कोई भी बंदा नहीं आया डांस की एंट्री देने के लिए, सिंगिंग की एंट्री देने के लिए. कोई एंट्री देने के लिए कोई आया ही नहीं. द प्रोफेसर हु वाज इन चार्ज ऑफ द कल्चरल फेस्टिवल, ही वाज सो शॉक्ड, कोई नहीं आया. Somehow he called us, मतलब हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो he was like कि यार हॉस्टल वालों को बुलाओ, कुछ तो करेंगे. He called the hostel boys and he says, बेटा कल्चरल फेस्टिवल तुम्हारे लिए है, तुम हो कल्चरल फेस्टिवल के हीरो. और कोई आ ही नहीं रहा कल्चरल फेस्टिवल में. ना डांस है, ना सिंगिंग है, ना कुछ है. मैंने मेरे बाजू वाले की तरफ देखा, बाजू वाले ने उसके बाजू वाले की तरफ देखा, एंड वी ऑल आस्क्ड द सेम क्वेश्चन, ए तेरे को गाना आता है, ए तेरे को गाना आता है, ए तेरे को गाना आता है. एंड वी ऑल न्यू हम कितना गंदा गाना गाते हैं, बिकॉज रोज हॉस्टल में गाना गाते थे. हमारे पास एक गंदा सा स्पीकर था, कोई बंदा अपने मोबाइल में गाना लगाता था, हम सब गाना गाते थे. और हमको पता है कि हम कितना गंदा गाना गाते थे. गाना हमने बोला सर गाना नहीं होगा सर हम लोगों से, बहुत बैड सिंगर सर, वी आर वेरी बैड सिंगर्स. उसने बोला यार डांस है, डांस तो कर सकते हो. अगेन वी लुक्ड एट ईच अदर. मैंने मेरे बाजू वाले को देखा, उसने उसके बाजू वाले को देखा, एंड लाइक हाँ ये बढ़िया बात बोली है सर, डांस किया जा सकता है. यू वोंट बिलीव, मैंने मेरी जिंदगी में कभी डांस नहीं किया था. मुझे पता ही नहीं था डांस क्या होता है. इमेजिन आर्मी किड, यू थिंक आर्मी किड कभी डांस करेगा? मेरे पापा के पास जो जूते का साइज था ना, अगर आप वो देख लोगे ना तो आप सोचोगे जूता है कि क्या है. एक बार पड़ जाए ना आप उठोगे नहीं 2 दिन तक. आई वॉज अ वेरी डिसिप्लिन किड. बट वहां गए एंड ही वाज लाइक डांस, लाइक समबडी लुक्ड एट मी, इमरान डांस, लाइक हाँ चलो भाई अब क्या है. यू वोंट बिलीव, सिंगिंग छोड़ के उस कल्चरल फेस्टिवल में जो भी था सब कर दिया मैंने. एंड आई डिडंट न्यू आई कैन डांस आल्सो. आई डिडंट न्यू दिस. There was one more thing in which I participated. It was called the Prince and the Princess competition. Prince and Princess मतलब कॉलेज का उस ईयर का प्रिंस और प्रिंसेस चूज किया जाएगा. मैंने इसमें भी पार्टिसिपेट कर लिया. यू वोंट बिलीव, इस प्रिंस और प्रिंसेस कंपटीशन में रैंप वॉक था.
ramp walk, plus there were judges who will be asking you questions. It was totally like Miss India में होता है ना, they walk on the ramps, judges ask their questions, ask them questions and like they see how good your brain is. उस तरह का एक रैम्प वॉक अरेंज हुआ था फर्स्ट ईयर में. यू वोंट बिलीव, मैंने मजे मजे में उसमें भी पार्टिसिपेशन ले लिया, डांस में भी पार्टिसिपेट कर लिया. एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वाज लाइक वाओ, आई कैन डांस, वाओ, आई कैन वॉक ऑन द रैम्प. दिस वाज द पॉइंट. एट दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि यार आई कैन डू एनीथिंग. Why I was restricting myself, or I didn't get an opportunity from first standard to the 12th standard. Nobody approached me for dance, or I never went and asked the cultural wala head ki sir can I dance, because I didn't knew I can do that. Halaki I dance very bad, but that's a different thing. Dance is dance for me. अच्छा या बुरा मैं उस वक्त नहीं देखना चाहता था, बट अल्टीमेटली जब हमने डांस किया तो था कि यार ठीक है भाई, आज के बाद तुम डांस मत करना, इतना भी अच्छा डांस नहीं करते हो तुम. आई वाज लाइक चलो ठीक है, कोई बात. बट द कल्चरल फेस्टिवल इट स्टार्टेड एंड रैम्प वॉक की तैयारियां शुरू हुई. द थीम ऑफ द रैम्प वॉक वाज इंडियन स्टेट्स के कोई भी आप ड्रेसिंग चूज कर सकते. इंडियन स्टेट्स की ड्रेसिंग आप चूज कर सकते. आप कोई भी इंडियन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू नो व्हाट, आई रिप्रेजेंटेड पंजाब. व्हाई? बिकॉज मैं महाराष्ट्र में 2 साल रहा था, बट मेरे डैड की मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग्स नॉर्थ साइड में हुई थी, लाइक दिल्ली, मथुरा, अंबाला, एंड आई वाज वेरी मच इनटू दैट. बिकॉज आप ऐसा समझ लो, आप 11th 12th में पुणे में आए हो, बट आप अपनी जिंदगी का 8 साल आपने नॉर्थ में गुजारा है. That's why I'm not good at Marathi. I chose Punjab. I went to a shop. मैंने पंजाब का लुंगी, ड्रेस, फेटा, दाढ़ी, मूछ, सब कुछ चूज किया. Then I didn't find a stick, bamboo stick, because if you know the Punjabis, they walk with a bamboo stick. I didn't found a bamboo stick there. I went to a गन्ना का शॉप. You understand गन्ना, शुगर केन वाला शॉप. उसको बोला मेरे हाइट का 6 फीट या 6.5 फीट का गन्ना काट के दे. I literally walked the ramp in a Punjabi manner with a ganna in the hand, and people were shocked. ये गन्ना कहां से लेके आया? I was like, लकड़ी मिल नहीं रही थी, गन्ना के साथ कर दिया. Important है ना, हाथ में कुछ होना चाहिए, बस किया. You won't believe what happened. Ramp walk जब start हुआ, you know, I was I think the 3rd or 4th one to walk on the ramp. This is the ramp, and here is the audience, and here are the judges. Okay, here are the judges like this. ये पूरा क्राउड यहाँ पे बैठा हुआ है, मेरा हॉस्टल क्राउड बैठा हुआ है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग, दे वर लाइक ये इतना चिल्ला रहे थे वो पीछे से, जैसे पता नहीं कोई मूवी स्टार आ गया हो. और मैं गन्ना हाथ में लेके यहाँ पे आया, और मैंने गन्ना यहाँ पटका. जैसे मैंने गन्ना पटका, वो नीचे से टूट गया. गन्ना है यार, एक्चुअली शुगर केन है, बांबू थोड़ी है, पटकोगे तो टूटेगा ही ना. And when I went to the stage in front, I just banged that ganna on the floor and it broke. And the audience were mad. They were like, wow, क्या गन्ना तोड़ा है? उनको क्या पता था, मेरे को खुद को नहीं पता था गन्ना टूट जाएगा. And I didn't ever reacted. I just saw कि audience को ऐसा लग रहा है कि गन्ना मैंने जानबूझ के तोड़ा है. And I reacted like, हाँ जानबूझ के तोड़ा है. मैं और थोड़ा कॉन्फिडेंस में खड़ा हो गया. I was like, हाँ देखो, यही तो है पंजाबी, ये तो है पंजाबी, जो बोले सो निहाल. I took the mic, I said, जो बोले सो निहाल, and you know, audience were mad and all that. I gave my introduction, मैं हूँ ऐसा, मैं हूँ वैसा. There were 2-3 rounds, and I was the finalist. And there was one more boy. मुझे आज भी उसका नाम याद है. His name was Aniket and Imran. These 2 kids were the finalists. इनसे फाइनल राउंड कराने वाले थे. एंड देयर वर 2 गर्ल्स हु वर द प्रिंसेस, जिनको इनके बीच में फाइनल होने वाला था. फाइनल राउंड वाज क्वेश्चनिंग राउंड. दे विल आस्क यू अ सिंगल क्वेश्चन, एंड इफ यू आंसर दैट क्वेश्चन और आपने उसका सही जवाब दिया, जजेस को वो जवाब पसंद आया, आप उस फर्स्ट ईयर के प्रिंस है. इमेजिन फर्स्ट ईयर इन द इंजीनियरिंग एंड यू आर द प्रिंस ऑफ द कॉलेज. कैसा पब्लिसिटी होता था, इमेजिन करो. आप भी अभी ऐसा होता है, आप क्लास के मॉनिटर भी बन जाओ ना, तो भी आपको ऐसा लगता है दैट यू आर द किंग.
अगर आप स्कूल का हेड बॉय बन जाओ या समथिंग लाइक दैट, यू फील लाइक यू आर द किंग. इमेजिन आई वाज गोइंग टू बिकम द प्रिंस ऑफ द कॉलेज, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग. क्या ड्रास्टिक चेंज आ रहा था मेरी लाइफ में. दैट वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन माय लाइफ. बट ऑडियंस वाज द मोस्ट सपोर्टिव ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस से पूरे अपने लोग ही थे ना. आधा तो हॉस्टल भरा हुआ था. अनिकेत वाज नॉट फ्रॉम द हॉस्टल, आई वाज फ्रॉम द हॉस्टल. So audience partial हो रही थी. Audience were like shouting my name like hell, and the judges were also like यही बंदा जीतने वाला है. Imran is going to win because just the audience, just look at the audience, and it was absolutely true. 100 marks का था. मैंने बाद में वो शीट चेक की है. Aniket was 60 out of 100 and I was 80 out of 100 at the last round. At the last round, जब last round होने वाला था, मैं अनिकेत से 20 पॉइंट से आगे था, and it was damn sure that I'm going to win this ramp walk. I'm going to become the prince. आप लोग हो ना कि सो गए? Audience? Listening, sir. Audience is there? Yes, sir. Okay, I hope the audience is there, and I hope you're not getting bored. Please understand the Aniket. He walks the ramp for the last time, and the judges ask him the question. Judges ने अनिकेत से पूछा, what is your unique quality? Judges ने अनिकेत से पूछा, what is your unique quality? मुझे अभी भी वो दिन याद है. अनिकेत ने नैनो सेकेंड लिए होंगे. नैनो सेकेंड, यू अंडरस्टैंड, सच अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम. नैनो सेकेंड या 1 सेकेंड का ड्यूरेशन उसको लगा होगा, एंड ही वाज सो क्विक. ही सेड ऑनेस्टी. अगर मैं अभी आपसे पूछूंगा व्हाट इज योर यूनिक क्वालिटी, 1 सेकेंड में जवाब दोगे? इम्पॉसिबल. कभी आपने सोचा भी नहीं होगा ये चीज. He gave the answer in 1 second. He gave the answer in 1 second. मुझे आज भी वो टाइम याद है. जजेस ने पूछा what is your unique quality? I was like honesty, and the crowd went mad. The crowd was like woo, क्योंकि crowd को पसंद आया. Crowd को उसका prompt reaction पसंद आया. Audience के साथ साथ judges को भी उसका prompt reaction पसंद आया. And just see, if somebody says my unique quality is honesty, just see, वो एक gentleman की तरह behave कर रहा था वहां पे. He was behaving like a gentleman. And suddenly audience में अनिकेत का नाम आना शुरू हो गया था, because people liked his response. But अपना hostel crowd audience में था. Hostel crowd like अपना बंदा आना बाकी है. वो बाजू वाले से लड़ाई कर रहे थे, चुप बैठ, अपना बंदा अभी आना बाकी है, अभी इमरान आना बाकी है. I was on the floor. I walked the floor with great confidence, because मुझे पता था मैं जीतने वाला हूं. I said hello to the guest. And guests were like, hello Imran, how are you doing? I said I'm fine. जज ने बोला I can see your popularity. मैंने बोला popularity कुछ नहीं है, हॉस्टल वाले लड़के इसलिए इतना आवाज कर रहे हैं. ये मैंने दिल में कहा. बट उन्होंने जो I can see your popularity, मैंने ठीक है यार, चलो बढ़िया है. तो एक फीमेल थी जज में, and she was a well you know अच्छे पोस्ट पे थी वहां पे. She asked me a question, Imran, what's the aim of your life? This was the question asked to me. Imran, what's the aim of your life? As soon as I heard this word, you won't believe, उस बंदे ने 1 सेकेंड में आंसर दिया होगा. मेरे को 2 सेकेंड में तो मेरी पिछले 10 साल की जिंदगी का फ्लैशबैक आ गया था. 10 साल की पिछली जिंदगी का पूरा फ्लैशबैक मेरे दिमाग में गया. पूरा एनडीए से लेके आईआईटी कोचिंग, एवरीथिंग. एंड सडनली आई रियलाइज्ड दैट मेरे पास तो कोई एम ही नहीं है. आई डोंट हैव एनी एम इन माय लाइफ. एंड एट दैट पॉइंट आई आंसर्ड, आई स्टिल रिमेंबर माय वर्ड्स, मैम, टू बी रियली ऑनेस्ट, I still don't have a aim. हालांकि अनिकेत की यूनिक क्वालिटी ऑनेस्टी थी, बट मैंने वहां पे ऑनेस्टी का एग्जाम्पल दिया. I was really honest at that time.
अनिकेत ने भले उसकी यूनिक क्वालिटी ऑनेस्टी बताई हो, बट मैंने अपनी यूनिक क्वालिटी ऑनेस्टी वहां दिखाई। मेरे पास सच में उस वक्त कोई एम नहीं था, एंड आई सेड दिस, एंड यू वोंट बिलीव, एज आई सेड दिस द क्राउड वाज मैड एट मी। बस अच्छा हुआ उनके पास अंडे या टमाटर नहीं थे, और अच्छा हुआ वहां पे थोड़ी डिसेंसी थी, वरना जूते चप्पल फेंक के मारने वाले थे मेरे को, मेरे खुद का हॉस्टल क्राउड। बिकॉज एवरीबडी न्यू हाउ कैन यू बी ऑन द स्टेज एंड यू आर लाइक एम नहीं है लाइफ का। हालांकि वहां ऑडियंस से बैठे हुए सारे लोग का कोई एम नहीं था, सब लोग मेरे जैसे ही थे, बट क्योंकि मैं स्टेज पे खड़ा था, उन लोग को मैं दिख रहा था, एंड ही वाज थिंकिंग दैट मैं एक हीरो हूं और हमारे हीरो के पास कोई एम नहीं है। आई वॉज रियली ऑनेस्ट, मेरे पास सच में कोई एम नहीं था। ऑडियंस को पता था मैं प्रिंस बनने वाला नहीं हूं। अनिकेत स्कोर्ड 90 out of 100, I scored 85 out of 100. He was the prince of the college. I cried that day. I literally cried that day. Literally cried. Not because मैं प्रिंस नहीं बना, because मेरे पास कोई एम नहीं है लाइफ का। This was the biggest setback in my life. And this setback, it actually came with a very wonderful story, the ramp walk. And उस रैंप वॉक का जो 1 घंटा था, जिस वक्त मैं खुद को हीरो फील कर रहा था, यू वोंट बिलीव, thousands of audience shouting at you like hell. अगर आपके पास साथ कभी ऐसा होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि how heroic feeling you get. And suddenly you are zero from a hero. How bad it feels just because आपके हीरो के पास कोई लाइफ का एम नहीं है। आप किसी ऐसे इंसान को हीरो मानोगे जिसके पास कोई लाइफ में एम ही नहीं है? You, I think you won't believe कि ये हीरो भी है। After that, I didn't knew. I was very very confused. I was like यार क्या है मेरे लाइफ का एम? मैं खुद को नहीं पता है क्या है मेरे लाइफ का एम। I was very disappointed. मतलब कैसे, क्या मेरे को खुद को नहीं पता यार, क्या करूं जिंदगी में। इंजीनियरिंग में आ गया बाय हुक या क्रूक, पता नहीं इंजीनियरिंग करनी भी थी कि नहीं करनी थी। उस वक्त मेरे टाइम पे तो इंजीनियरिंग फैशन था। क्या करता है आपका बेटा? इंजीनियर है। बोला अरे वाह, पीपल लाइक वाह। उनको क्या पता इंजीनियरिंग के बाद जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वेरी डिसअपॉइंटेड। उस डिसअपॉइंटेड में फर्स्ट ईयर चले गया, सेकेंड ईयर चले गया, थर्ड ईयर चले गया, एंड आई स्टिल डिडंट हैव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक से मेरे पास इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। One day, I still remember the class. The lecture was power electronics. I still remember the teacher's name, Rupali ma'am. I still remember where I was sitting, back bench. अब जैसे ही मैंने बोला I was a back bencher, don't judge me. Back benches खराब नहीं होते। मेरी हाइट ज्यादा थी इसलिए मैं बैक बेंच पे बैठता था। क्लास में मैं बिल्कुल शांत रहता था। आई वॉज नॉट अ मिस्चिफ टाइप ऑफ स्टूडेंट, बिकॉज वो मेरे अंदर है ही नहीं। आई वॉज नॉट लाइक फालतूगिरी एंड ऑल दैट स्टफ, लाइक बैक बेंचर था। पर पता नहीं उस दिन क्या हुआ, आई डोंट नो। आई वॉज टॉकिंग टू समबडी एंड रूपाली मैम वॉज आउट ऑफ हर माइंड। आई थिंक कुछ तो हुआ रहेगा, बच्चों ने बहुत परेशान किया होगा, एंड मैं बैक बेंच में किसी से पानी मांग रहा था, या मैं कुछ बातें कर रहा था, या आई वॉज स्माइलिंग। समथिंग व्हाट हैपेंड, उनकी नजर मेरे पे पड़ी, एंड शी थॉट आई एम स्माइलिंग एट हर। She thought I'm smiling at the way she teaches. She thought मैं उनका मजाक बना रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं था। And suddenly she stood up and she's like, Imran. I said, yes ma'am. And that fellow, और एक और लड़का था, फालतूगिरी कर रहा था। वो एक्चुअली फालतूगिरी सच में कर रहा था। He was like, Imran. I said, yes. And I still remember the other child's name. His name was Brighton. He said, Imran and Brighton, कल आप मुझे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ये टॉपिक एक्सप्लेन करोगे। She gave a topic to me, she gave a topic to Brighton, and she was like, आप मुझे ये टॉपिक कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करोगे। बहुत हंसी आ रही है ना तुम लोग को, बहुत दांत दिखाना है तुमको लेक्चर में। You will explain this topic in the lecture, and if you don't explain, just see what I'll do. I was like, okay, ठीक है। हाँ, ये हुआ तकरीबन 11 बजे। मेरा कॉलेज खत्म हुआ तकरीबन 5 बजे। मैं हॉस्टल गया, मेरे हॉस्टल वाले ने बोला चाइनीज खाने का मन कर रहा है। मैंने बोला हाँ यार, बहुत दिन से चाइनीज नहीं खाया। हमने अपना बैग उठाया, बाजू में चाइनीज का स्टॉल था, वहां पे जाके चाइनीज खाया। रिटर्न आते आते हम लोग को 10 बज गए, क्योंकि हम बातें बहुत करते थे। और 10 बजे आने के बाद मैं सो गया। सुबह मैं उठा, मैं मस्त तैयार होकर एकदम हीरो बन के कॉलेज आया। मैं क्लास में आया,
फिर लोगों ने मुझे, फिर मैंने लोगों को देखा, वो लोग ब्राइटन के आजू बाजू ऐसे घेरा बना के खड़े थे। मैं बोला अबे ये ब्राइटन को ऐसा घेरा बना के क्यों खड़े हैं ये लोग? बोले अबे पागल, आज ब्राइटन का लेक्चर है और तेरा भी लेक्चर है। मैंने कहा क्या? बोले हाँ, तेरे को याद नहीं? मैंने बोला नहीं। बोले ब्राइटन क्या कर रहा है? ब्राइटन लैपटॉप लाया है। मैं बोला क्या? मैं बोला उसके पास लैपटॉप भी है? बोले हाँ, तेरे पास नहीं? बोला नहीं। बोले वो क्या कर रहा है? ही हैज मेड अ पीपीटी। मैं बोला क्या? बोला ब्राइटन तू पागल वागल हो गया क्या? शी वॉज जस्ट एंग्री एट अस। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि तुम कल ये टॉपिक एक्सप्लेन करोगे, इतना सीरियसली क्यों ले रहा है भाई तू? इमरान तेरे को पढ़ाना है तो पढ़ा, मैं तो पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? मैंने पीपीटी बनाया है, मैं प्रोजेक्टर वोजेक्टर का अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ। आ रहा है तेरे को समझ में? तेरे को पढ़ाना है पढ़ा, नहीं पढ़ाना मत पढ़ा। आई एम गोइंग टू रॉक टुडे, अंडरस्टूड? मैं बोला भाई क्यों ऐसे कर रहा है यार? तू भी मत दे, मैं भी मत देता हूँ, दोनों नहीं देंगे तो भाई सेम बोट पे रहेंगे ना। इमरान तू बात को नहीं समझ रहा, मेरे को पढ़ाना, मैं तो पढ़ाने वाला हूं भाई, मैं तो जाने वाला हूँ स्टेज पे। मेरे को आ गया टेंशन, मैं भाग के गया लाइब्रेरी। यू वोंट अंडरस्टैंड, मेरे पास बुक भी नहीं थी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। मैं आता था एक नोटबुक लेके कॉलेज में। आई वेंट टू मैं लाइब्रेरी गया, मैं लाइब्रेरी वाले को बोला भाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक चाहिए, एंड ही वाज लाइक ऑथर बताओ। मैंने कहा ऑथर क्या होता है? ही वाज लाइक अबे कोई तो ऑथर की चाहिए। मैं कुछ भी दे दे भाई, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स दे दे खाली। मुझे आज भी याद है, उसने मुझे खान चंदानी की बुक दी थी, इतनी मोटी बुक थी। somehow I remember the topic she has told me. I had only and only 15 minutes of time, क्योंकि जब मैं लेक्चर में आया, वहां से जब मैं भाग के लाइब्रेरी गया, उसके बीच में सिर्फ 15 मिनट का टाइम था कि मुझे आके उस टीचर, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर उन्हीं का था, रूपाली मैम का नेक्स्ट लेक्चर था। I just had 15 minutes of time and I somehow read 2 pages and I entered the class. Brighton was looking at me. Brighton ने लगाया प्रोजेक्टर, बोर्ड पे लगाया प्रोजेक्टर। He was projecting, he was standing with a stick in his hand. You won't believe बंदा कोट पहन के आया था, you won't believe बंदा ब्लेजर पहन के आया था, and you won't believe what I was wearing, a t-shirt and a jeans, वो भी जीन्स नीचे से टोन थी, उस वक्त फैशन था। और वो बंदा लिटरली ब्लेजर पहन के आया था। I was looking at him as like पागल हो गया है क्या? ब्लेजर कौन पहन के आता है बे इतने से लेक्चर के लिए? And you believe ब्राइटन ने लेक्चर लिया with PPT, with अलाना and with फलाना, and he was rocking. And you won't believe ब्राइटन और मुझे सेम टॉपिक दिया गया था पढ़ाने के लिए, सेम टॉपिक था हम दोनों का। ब्राइटन took around 30 minutes. मैं लिख के बताता हूं, 30 मिनट्स में मेरे को ब्राइटन का एक वर्ड नहीं समझ में आया। मेरे को क्या, पूरे क्लास को नहीं समझ में आया, पूरा क्लास क्या मैडम को खुद को नहीं समझ में आया। उसने 30 मिनट्स में क्या बकवास किया उसको खुद को पता रहेगा। And after getting down the stage, while getting down the stage, he was giving me a look. वो मुझे देख रहा था, बोले बेटा आजा, तब तेरी बारी है। नाउ क्लास, आफ्टर 2 years, मतलब रैंप पे मैं फर्स्ट ईयर में चढ़ा था, अब मैं रैंप पे चढ़ रहा था। कौन से रैंप पे? मेरे क्लास के रैंप। इमरान वॉज स्टार्टिंग हियर, आई स्टिल रिमेंबर, मैं खुद को देख सकता था वहां पे। टी शर्ट ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर की जीन्स जो फटी हुई है, व्हाइट कलर के जूते, ठीक है? उस वक्त मेरे बाल भी बहुत बड़े हुआ करते थे, ठीक है? आई वाज स्टैंडिंग ऑन दिस, nobody expected कि ये बंदा बोल भी पाएगा कुछ। एंड आई वाज माई सेल्फ, मुझे खुद पे भरोसा नहीं था। 15 मिनट तो पढ़ा था भाई। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट अगर आप जाके खोल के देखोगे ना, आपकी खुद की नींद उड़ जाएगी। 15 मिनट तो पढ़ा था। मैम वाज लाइक, इमरान डू यू हैव एनी पीपीटी? मैं बोला नो मैम। लैपटॉप? मैं बोला नो मैम। प्रोजेक्टर? नो मैम। was like, then how are you going to teach? Ma'am bola, ma'am I think you have a chalk in your hand. Ma'am said yes, please give me that. Where's the duster? Class, अब मेरी थोड़ी तारीफ का वक्त आ चुका है। I took only 10 minutes. 10 मिनट में I explained that complete topic with great examples. 10 मिनट में काम खत्म। बोर्ड पे जो मैंने एक्सप्लेन किया मुझे आज भी याद है। आई जस्ट टुक 10 मिनट्स, टॉपिक बताया, एग्जाम्पल्स बताया, एंड मैंने चॉक डेस्क पे रख दिया। एज सून एज आई ड्रॉप्ड माई चॉक, everybody was like, wow, wow. Rupali ma'am was like, wow.
इमरान तुमने तो रात भर पढ़ाई की है। एंड आई वाज जस्ट नॉडिंग माय हेड, यस मैम, मैं रात भर सोया नहीं। उनको क्या पता भाई, अभी तो 15 मिनट पहले पढ़ के आया खाली। एंड उसके बाद हर एक बच्चा मेरे पास आके बोलने लगा कि यार इमरान, पता नहीं यार, तूने बहुत अच्छा पढ़ा दिया यार, पता नहीं, मैं कभी सोचा नहीं तू ऐसा स्टेज पे जाके कोई टॉपिक भी पढ़ा सकता। मैं बोला मैंने खुद ने नहीं सोचा है, तू क्या बता रहा है, तूने नहीं सोचा भाई, मेरे को खुद को नहीं पता था। एंड रूपाली मैम वाज लाइक, इमरान वी हैव अ पेपर प्रेजेंटेशन एट मुंबई लेवल। मैं बोला व्हाट मैम, आई डिडंट गेट यू। इमरान यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग एट मुंबई लेवल, कॉलेज का इंटर कॉलेज कंपटीशन होता है, आई वुड लाइक यू टू रिप्रेजेंट आवर कॉलेज। मैं बोला व्हाट मैम, मैंने सिर्फ 10 मिनट का लेक्चर लिया है और एक टॉपिक पढ़ा है विच 2 एग्जांपल के साथ, एंड यू आर टेलिंग मी टू रिप्रेजेंट माय कॉलेज एट मुंबई लेवल फॉर पेपर प्रेजेंटेशन। बोला यस आई वांट यू टू डू दैट। मैंने कहा ठीक है, कर लेते। आई स्टार्टेड माय जर्नी फ्रॉम दैट। मैंने मुंबई के वेरियस कॉलेजेस में पेपर प्रेजेंटेशन दिया। पेपर प्रेजेंटेशन का मतलब होता है देयर इज अ टॉपिक गिवन टू यू एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द ऑडियंस अबाउट दैट टॉपिक। मैं जहां पे भी जाता था, मैंने बोला ना मेरी तारीफ का टाइम है, अभी तक से मेरी तारीफ हुई नहीं थी, अब मेरी तारीफ का टाइम। यू वोंट बिलीव, जब मेरा नाम आता था ना, तो कॉलेज का हर एक प्रोफेसर और कॉलेज का हर एक स्टूडेंट तुम्हें उस सेमिनार हॉल में दिखाई देगा। नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा, चेयर पे बैठा हुआ दिखाई देगा, दरवाजे पे खड़ा हुआ बैठा हुआ दिखाई देगा, किधर भी दिखाई देगा, पर तुम्हें दिखाई देगा। मैंने एक दिन एक टॉपिक लिया था, दैट वाज कॉल्ड एज डेजा वू। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस डेजा वू। ऐसा लगता है कि ये चीज हमारे साथ पहले भी हुई है। मैं जानबूझ के कभी कभी ऐसे टॉपिक्स चूज करता था जो बहुत इंटरेस्टिंग होते थे, और उसके ऊपर मैं ऐसी साइकोलॉजिकल थिंग्स बताता था जो लोगों को कभी पता नहीं होती थी, विद एग्जांपल्स। डे बाय डे, जब तक मेरा 4th ईयर इंजीनियरिंग खत्म हुआ, आई वॉज वेरी वेरी वेल अवेयर कि मुझे लाइफ में बनना क्या है। आई वॉन्टेड टू बिकम अ टीचर। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं अभी शायद आपको बता नहीं पा रहा हूं, पर वो जो 2 साल थे, उन 2 साल में मुझे ये खुद को फीलिंग आने लगी थी कि ये मेरा एम है। प्लीज अंडरस्टैंड, मुझे आज तक कभी ये फीलिंग नहीं आई थी मेरा एम क्या है, नेवर एवर, नेवर एवर। बट इन दैट 2 years, 3rd year और 4th year, मुझे खुद को वो फीलिंग आने लगी थी कि आई कैन टीच, एंड नॉट जस्ट टीच, आई कैन टीच थिंग्स इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर with some good and beautiful examples। जैसे कि मैं हर बार कहता हूं, घर घृति एग्जांपल्स, होमली एग्जांपल्स होनी चाहिए। मैंने लास्ट लेक्चर में, जिसने मेरा फिजिक्स का लेक्चर अटेंड किया है, यू मस्ट हैव सीन आई डोंट गिव एग्जाम्स ऑफ नासा एंड इसरो एंड ऑल दैट, कि यहां ऐसा होगा वहां वैसा होगा। गए नहीं यार, क्या पता चलेगा। घर के एग्जांपल्स देना मैं पसंद करता हूं, सिंपल मैनर में एक टॉपिक एक्सप्लेन करना मैं पसंद करता हूं। एंड समहाउ आई थॉट कि यार ये शायद मेरे अंदर एक क्वालिटी है। And as soon as I understood my quality, I went for masters. I did my masters from Mumbai University, masters in engineering, and that too in electronics and telecommunication, EXTC. You won't believe, masters में एक project presentation होता है, project presentation। आपने जो मास्टर्स में रिसर्च किया है उसका प्रेजेंटेशन आपको देना चाहिए। यू वोंट बिलीव, मुंबई यूनिवर्सिटी का वन ऑफ द वेरी फेमस गाय, हिज नेम इज रवीश आर सिंह। कभी गूगल करके देखना, ही वॉज माई गाइड। ही इज एन ऑथर ऑफ मेनी 10 to 15 बुक्स लिखे इन्होंने। ही वॉज माई गाइड। वन डे जब मैं 50 डिग्निटीज के सामने मेरा मास्टर्स का प्रोजेक्ट सुना रहा था, एंड मैं मास्टर्स का प्रोजेक्ट जब मैं दे रहा था, as soon as my master's project ended, he offered me a job. He told his colleagues, ये बंदा मेरे को ये कॉलेज में चाहिए by hook या crook. Ask him what is his demand. पूछो उसको कितना सैलरी चाहिए। He offered me a job just after seeing my project seminar. एंड तब उसके बाद मैं रुका ही नहीं, मैं उसके बाद रुका ही नहीं। कुछ स्टोरी है व्हाई आई लेफ्ट मुंबई। जब मैं इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता था, मुझे पता चला कि इंजीनियरिंग के बच्चों को कुछ नहीं आता है।
दे डोंट नो एनीथिंग, जीरो होते हैं फर्स्ट ईयर में आने के बाद। मैं खुद जीरो था फर्स्ट ईयर में आने के बाद। आई लेफ्ट माई असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब इन मुंबई, आई केम बैक टू पुणे, आई गैदर्ड सम मनी। मेरे पास उस वक्त इतने पैसे नहीं थे, अभी अभी जॉब लगा था, मैंने तकरीबन 1 या 2 साल जॉब किया होगा। जितने पैसे आए वो तो खर्चे में चले जाते थे मुंबई में। मैं पुणे में आया, मैंने पुणे में 3 साल क्लासेस में काम किया ताकि मेरे पास कुछ पैसे आए और मैं बीएड कर सकूं, बीएड, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टीच द 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, ताकि जब मेरे से पढ़ के कोई 11th और 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट इंजीनियरिंग में जाएगा, या मेरे से पढ़ के कोई 11th और 12th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट मेडिकल में जाएगा, किधर भी जाएगा, उसको वहां पे कोई जीरो नहीं बोलना चाहिए। आई लेफ्ट माई असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब फॉर एजुकेशन। मैं बोला नहीं, अपन पढ़ाएंगे तो 11th 12th वालों को पढ़ाएंगे, ये इंजीनियरिंग वालों को तो वैसे भी कुछ नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं है किसी का। क्योंकि जब मैं पुणे आया, आई वेंट टू मेनी स्कूल्स एंड आई टोल्ड देम कि आई वांट टू वर्क हियर। दे सेड बीएड है, मैं बोला नहीं है, बीएड नहीं है तो नहीं लेंगे। दिस वाज द थिंग दैट वाज गिवन टू मी। सो आई डिड बीएड आफ्टर डूइंग मास्टर्स। जस्ट इमेजिन, मास्टर्स वाला बंदा बीएड कर रहा है। वहां पे लोग मुझे पूछते, सर पागल वागल तो नहीं हो गए, मास्टर्स की डिग्री है बीएड कर रहे हो? मैं बोला तू नहीं समझेगा। उनको लगता था कि मास्टर्स की डिग्री कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बंदा बीएड कर रहा है। मैं बोला तुमको जो सोचना है सोचो, मुझे पता है कि मैं बीएड क्यों कर रहा हूं। आई नो आई एम डूइंग बीएड। अकॉर्डिंग टू दिस जर्नी, व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग, आई वाज एबल टू मेक स्टूडेंट्स फील अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दैट वाज फिजिक्स, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं हर बार कहता हूं, फिजिक्स एक फीलिंग है, वो एक इमोशन है, और ये फीलिंग और इमोशन एक स्टूडेंट के अंदर तभी आएगी जब वो टीचर वो फीलिंग और इमोशन स्टूडेंट के अंदर लेके आएगा। अगर आप खुद पैशनेट नहीं हो अपने करियर को लेके, आप खुद पैशनेट नहीं हो, आप जो चीज कर रहे हो उसको लेके, तो आप सामने वाले इंसान को डिलीवर कैसे करोगे? मैं खुद पैशनेट हूं पढ़ाने के लिए, मैं खुद पैशनेट हूं स्टेज पे खड़े होने के लिए, मैं खुद पैशनेट हूं एक टॉपिक एक सिंपल मैनर में मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। ये मेरा खुद का पैशन है, जो मुझे बाय हुक या क्रुक, हार के, सीख के, गालियां सुन के, ऑडियंस की नकारात्मक सोच देख के, ऑडियंस का चिल्लाना, ये क्या बोल दिया, एम नहीं तेरे लाइफ में, पागल कैसा लड़का है, whatever the stage, the 10 minutes which I spent on the stage, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर, मैंने बहुत कुछ सहा है। तब जाके मुझे पता चला कि ये मेरा पैशन है, ये मुझे करना है। बट मुझे बहुत देर हो गई मेरी पैशन को समझने में, बहुत देर हो गई मेरे पैशन को समझने में। 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आने के बाद मुझे मेरे पैशन के बारे में पता चला। दैट्स टू लेट, दैट्स टू लेट। बट आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूं तो ये पैशन मेरे अंदर पहले से ही था। मुझे आज भी याद है जब मैं 4th 3rd स्टैंडर्ड में थॉट बोलने स्टेज पे जाता था। यू नो थॉट ऑफ द डे, 2 लाइन का थॉट ऑफ द डे होता है, आप असेंबली में जाके थॉट ऑफ द डे बोलते हो। सच ए क्यूट मोमेंट। एक छोटा सा बच्चा आता है, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, टुडेज थॉट ऑफ द डे इज, याद है ऐसा होता था, छोटे छोटे बच्चे असेंबली में आते थे थॉट ऑफ द डे बोलने के लिए। मैं था वो बच्चा छोटा सा जब मैं थॉट ऑफ द डे बोलने जाता था। एंड व्हेन आई हैड टू से द थॉट ऑफ द डे आल्सो, पीपल यूज्ड टू क्लैप। कितने अच्छे से बोला बच्चे ने, कितने, मेरे को लगता था इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी। वो मेरे अंदर पहले से ही था। आई हैड दिस इन माई हार्ट, आई हैड दिस इन माई ब्रेन, बट मैं कभी उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। और जब मैंने रिकॉग्नाइज किया तब बहुत देर हो गई थी। उसके बाद मुझे पिकअप लेने में बहुत टाइम लगा। अगर मुझे पहले से ही पता होता कि मेरा पैशन क्या है तो मैं घुसता ही नहीं इंजीनियरिंग में। बट ऐसा नहीं है कि मैं इंजीनियरिंग को आज गलत बोल रहा हूं, इंजीनियरिंग ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स, जो फिजिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, पार्ट 2, फिजिक्स पार्ट 2 मेरा फेवरेट है। ऐसा नहीं है कि मैं फिजिक्स का पार्ट 1 नहीं पढ़ा सकता, मैकेनिक्स भी मेरा फेवरेट है, फिजिक्स पार्ट 1, दैट्स द मैकेनिक्स पार्ट। ये न्यूटन्स लॉ वगैरह, ये सब चीजें जो हैं, 4 लॉज ऑफ मोशन, ये मैकेनिक्स पार्ट में आते हैं। फेवरेट है मेरे दोनों के दोनों। इंजीनियरिंग ने मुझे ये सब चीज सिखाई। बस स्टोरी का समरी मैं देने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं ये बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं ये बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि तुम्हें कैसे करना चाहिए, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो ना। मैंने कभी ये नहीं कहा कि स्टोरी सुनाने के बाद मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है।
स्टोरी खुद में इतनी काफी थी कि यू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम नाउ. ऑब्जर्व योरसेल्फ रादर ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड. खुद को ऑब्जर्व करो, पता लगाओ कि तुम्हारे अंदर वो क्या चीज है जो तुम जिसके बारे में पैशनेट हो सकता है कि आज तुम किसी चीज के बारे में पैशनेट हो पर कल तुम उस चीज के बाद पैशनेट ना रहो. इट इज पॉसिबल. डोंट गेट डिप्रेस्ड, डोंट गेट लाइक यार आज मैं किसी और के बारे में पैशनेट हूं, कल मैं किसी और चीज के बारे में पैशनेट हूं, यार मेरा तो पैशन बदलते जा रहा है. होता है. पैशंस चेंज until unless you get a stability in your mind. But now, when you are in 10th, just now you have passed the 10th and you are going to enter in the 11th standard, now is the correct time to start observing yourself. पता लगाओ तुम्हारे अंदर वो क्या है. एक ना एक चीज सबके अंदर है. जो लोग बोलते हैं मैं किसी चीज के लिए नहीं बनाऊं, वो पागल है, वो कुछ भी बोलते हैं. Every person is made for something. And that's why you have taken science. That's why you should take science. बिकॉज जब आप साइंस लेते हो तो भले ही आज पैशन का पता ना चले, पता 2 साल के बाद पैशन का पता चले, साइंस लेने के बाद कहीं पे भी जा सकते हो. किसी भी चीज में आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हो. थैंक यू सो मच क्लास. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड समथिंग और द अदर फ्रॉम दिस जर्नी ऑफ माइन. इसका पीडीएफ भेजने वाला नहीं हुआ. सम पीपल लाइक सर इसका भी पीडीएफ भेजो हमें. ये हम पीडीएफ रखेंगे खुद के मोबाइल में. डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? वुड समवन लाइक टू स्पीक समथिंग? कौन कुछ बोलना चाहता है? वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, थैंक यू सर. इट वाज अमेजिंग स्टोरी व्हिच यू गिव डीप थिंक अबाउट अ करियर. यस जस्ट टेंशन मत लेना स्टोरी सुनने के बाद. बी कूल इनफ. लाइफ थोड़ा कूल रहने के लिए. डोंट बी वेरी हार्श ऑन यू. कभी कभी होता है कि लाइफ आपको लेट सिखाती है, बट जस्ट फ्लो. बट ऑब्जर्व करना शुरू करो, खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो. अगर आप खुद को ऑब्जर्व नहीं करोगे तो आफ्टर एट द एंड ऑफ दिस थिंग लाइक यू विल बी डूइंग व्हाट योर पेरेंट्स वांट और यू विल बी डूइंग व्हाट द सोसाइटी वांट्स. राइट? आजकल किसी भी बच्चे को पूछो क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, और उसको ये नहीं पता किस चीज का डॉक्टर बनना है. राइट? आजकल किसी को पूछो क्या करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है, कौन सी इंजीनियरिंग करना है वो नहीं पता. कौन सी इंजीनियरिंग करना है वो नहीं पता. चलो किसी ने आपको ये भी बोल दिया मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करना है. इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग क्यों करना है पता नहीं. यू डोंट नो एनीथिंग. यू शुड नो ईच एंड एवरी एंड ऑफ योर फ्यूचर. आज से सोचना शुरू करो. एंड डू रिमेंबर, discussion is never equal to decision. Try and learn to say no. Use your brain. खुद के ऊपर ट्रस्ट रखो. जब तक आप ऐसा नहीं करोगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे. थैंक यू सो मच क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. स्टार्टिंग विद द स्टार्टअप बैच एंड करते हैं कुछ धमाल. चले 8 बज गए. ओके कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है चैट सेक्शन में, माइक सेक्शन में. एनीथिंग यू वांट टू से यू कैन. थैंक यू आदित्य. थैंक यू निधि, अनाया, Sajri. I hope I'm pronouncing your name right. चले फिर बाय. Yeah. I wanted to share my experience because you should know. Because देखो यार एक पीपीटी है मेरे पास. ऐसे पीपीटी लेके तुम लोग को बहुत लोग मिलेंगे. बहुत मस्त वाला पीपीटी बनाया. The big question: science, commerce, art. Your skill, your interest, values, scope after commerce. मस्त वाला पीपीटी बनाया था मैंने ये तुम लोग के लिए. बट यार मुझे भी ऐसे पीपीटी बहुत लोग ने सुनाए हैं. मुझे भी ऐसे करियर सेमिनार्स बहुत लोग ने सुनाए हैं. बट आई थिंक आई नेवर यू नो गैदर्ड समथिंग. मेरे साथ तो ऐसा हुआ था. ऐसा मैं ये नहीं बोलता कि वो करियर सेमिनार्स खराब थे या अच्छे थे. सब करियर सेमिनार्स बहुत अच्छे होते हैं.
बट आफ्टर द करियर सेमिनार वी रियली डोंट ऑब्जर्व ऑन आवरसेल्फ। मेरा ये स्टोरी इंपॉर्टेंस ये था कि मैं चाहता हूं कि आप खुद के ऊपर ऑब्जर्वेशन आज से स्टार्ट करें। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, डिस्कशन इज नेवर इक्वल टू डिसीजन। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। ठीक है, चलो बाय 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 एवरीबॉडी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।